Hello students, welcome to your own channel Rajesh Srivastava Maths. In this channel you always get the concept based knowledge and I am always trying to give you the best knowledge students. Now this is my second video of the chapter reflection. In the last video I had given you all the concept of the chapter reflection. This is the first topic of coordinate geometry. Now today I am going to take the difficult problems of chapter test by ML Agrawal. Please see the video till the last. So taking the first question, please see the point P 4, minus 7 on reflection in the x-axis is mapped onto P dash. Then P dash on reflection in the y-axis is mapped onto P double dash. Find the coordinate of the P dash and P double dash. Write down the single transformation that maps P onto P double dash. Students, first of all हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट दिया है P 4, माइनस 7 ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो मैंने देखिए बना लिया है y एक्सिस x एक्सिस और बीच में क्या है बच्चों, ओरिजिन। दिस इज योर ओरिजिन। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, ये होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी दिस विल बी लाइक हियर। तो P पॉइंट इज हियर 4, माइनस का 7। नाउ इस पॉइंट को हमें रिफ्लेक्ट करना है इन द एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, इट बिहेव्स लाइक द मिरर। तो दिस विल गो अप 1 2 3 4 5 6 7 जस्ट हियर। दिस विल बी P dash and I hope you understood. It will be first quadrant, so 4, 7. The coordinate will be like this, and then P dash on reflection in the y-axis is mapped onto P double dash. This is y-axis. Now P dash will go this side. 1 2 3 4. This will be here. This will be P double dash, and it will be second quadrant. So x negative or y positive. Now the question is find the coordinate of the P dash and P double dash. So P dash we have got 4, 7 or P double dash we have got minus 4, 7. This is our first answer. Write down the single transformation that maps P onto P double dash. इसका मतलब ये हुआ कि P से अगर P double dash आपको लाना हो डायरेक्टली, तो हाउ कैन यू ब्रिंग द आंसर। तो यू कैन सी दे आर डायगोनली प्लेस्ड। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इट मीन्स द origin will be responsible. That means the second answer will be single transformation। का मतलब हो गया कि how can you get direct answer। तो single transformation means reflection through origin. What will be your answer? Reflection through origin. You will reflect the point P through origin. This is your final answer. Okay students, I hope you are understanding. Please see the video and give the likes and views and share it to your friends. Okay, see the next question please. Now see the question number 2. The point P A comma B is first reflected in the origin and then reflected in the y axis to P dash. If P dash has the coordinate this one, find A and B. In the question please see, जो हमारा बिगनिंग का पॉइंट है वो तो दिया नहीं है और उसको कह रहे हैं रिफ्लेक्ट पहले कर रहे हैं हम लोग किससे, ओरिजिन से कर रहे हैं, डायगोनली वो जाएगा। और फिर उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसे हम किससे कर रहे हैं, वाई एक्सिस से कर रहे हैं। तब हमको मिल रहा है P डैश, और P डैश का तुमको आंसर दिया हुआ है 3, माइनस 4। तो जो हमें पॉइंट दिया रहता है पहले हम उसको प्लेस कर देते हैं। तो ये बताइए P डैश की वैल्यू जो है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगी, x पॉजिटिव y नेगेटिव मींस ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3, माइनस 4 यानी 1 2 3 1 2 3 4, दिस विल बी हियर। तो P डैश इज 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे एंड से। तो ये हमारा P डैश कैसे मिला था, P डैश हमको मिला था जब हमने उसको y एक्सिस से किया था, यानी ये पॉइंट इधर से आया था, ये हमारा y एक्सिस है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है,
ये हमारा P डबल डैश है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में -3 और -4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ था कि ये पॉइंट कैसे आया था, ओरिजिन से आया था। इसका मतलब ये पॉइंट एक्चुअली में कहां से आया होगा, यहां से आया होगा, 1 2 3 4। इसका मतलब दिस पॉइंट हैज कम फ्रॉम हियर, जो कि आपका एक्चुअल पॉइंट था 3,4। और आपको ये पॉइंट क्या दिया है बच्चों, ये पॉइंट दिया है A, B। तो आई थिंक यू हैव कम टू नो A will be 3 and B will be 4. दिस इज योर आंसर। वंस अगेन प्लीज सी, जो आपको आंसर दिया है वहां से शुरू कर दीजिए और उल्टा क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये कोऑर्डिनेट दिया था, इसको प्लेस कर लिया, ये पॉइंट कैसे मिला था, ये पॉइंट मिला था y एक्सिस से होके आया था, तो ये यहाँ चला आया। और उसके बाद देखिए यही वाला पॉइंट जो था वो ओरिजिन से होकर आया होगा, लिखा था क्वेश्चन में, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, जो कि आपका ओरिजिनल पॉइंट था। A की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज योर आंसर। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 3. A point P, A, B becomes -2, C after reflection in the x-axis, and P becomes, that is same point becomes D, 5 after reflection in the origin. यानी एक पॉइंट अननोन है, अब ये पता नहीं है कौन से क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसके बाद इसकी दो कंडीशन गिवन है। एक तो ये पॉइंट ये बन जाता है जब आप उसे रिफ्लेक्ट करते हो इन द एक्स एक्सिस, और यही वाला पॉइंट बन जाता है D, 5 जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं विद द ओरिजिन। फाइंड द A B C D, यानी ये और ये हमें निकालना है। तो हमने ये बताना चाहिए कौन से पॉइंट हमको नोन है। तो देखिए इसमें हमको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो x की इंफॉर्मेशन यहाँ क्या है, नेगेटिव, और यहाँ y की इंफॉर्मेशन जो कि पॉजिटिव है। तो ये बताइए कि x की वैल्यू नेगेटिव किधर होती है, इस साइड में होती है। इसका मतलब ये हुआ, और इसे क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं x एक्सिस से। इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट हमारा x एक्सिस से ऊपर होता है वो से नीचे चला जाता है, यानी कि अप का डाउन, डाउन का अप हम यहाँ पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहीं पर x नेगेटिव होता है। लेकिन अब ये वाला पॉइंट जो है हमारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, यानी ये पॉइंट यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, और ये पॉइंट अगर यहाँ रखते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। अब आता है नेक्स्ट चीज कि ये वाला पॉइंट कहाँ रखें। तो देखते हैं आगे कि P बिकम्स D, 5। अब यहाँ y पॉजिटिव है, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव किधर होती है, ऊपर की तरफ होती है, यानी ये वाला पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, जिससे कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाए। अगर हम उसे x से कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं ओरिजिन से, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाए। तो लेट अस डिस्कस। तो पहले हम ये वाला पॉइंट दिखाते हैं कहाँ पर है। तो ये लिखा है -2, C, तो ये हो गया -2, यानी कि ये पॉइंट समवेयर यहाँ होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं सपोज ये Q पॉइंट है, और ये पॉइंट मान लेते हैं R। तो Q पॉइंट हमारा है, Q हमारा लिखा था -2, C, तो Q पॉइंट हमारा लिख देते हैं -2, C, और इसी के जस्ट नीचे आते हैं तो ये मेरा पॉइंट हो जाता है जो कि P है A, B। और जब ओरिजिन से करते हैं तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिलता है D, 5 लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो x तो पता ही है, तो ये हमारा 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि D पॉइंट, यानी जो हमारा आया है ये R, ये हमारा D, 5 होना चाहिए। तो अब देखिए एकदम क्लियर पता लग रहा है कि जो A की वैल्यू है वो तो हमारी आ गई, क्या लिख लेते हैं, R हमारे पास क्या है, D, 5। तो A की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है -2। अब आती है हमारी B की वैल्यू। तो जो B की वैल्यू है वो Y की वैल्यू है, कितनी होगी बच्चों, B की वैल्यू हो जाएगी 5, ये हो गया। अब आता है C की वैल्यू। C की वैल्यू भी देखिए इसके बराबर होगी, क्योंकि ये Y की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 5। और लास्ट में D की वैल्यू दी हुई है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ दिखे क्वाड्रेंट से दिखेगा, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ B की वैल्यू कितनी होगी -5, क्योंकि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और D की वैल्यू यहाँ पे आएगी +2, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव, और हमारे पास C हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे C हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे B हमारा नेगेटिव होगा।
लिख दिया माइनस का 5 और ए हमारा पता ही है थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होगा यानी -2 -5 5 and 2. दिस इज योर आंसर. प्लीज सी द concept. Okay, understand it. Okay, see the next question. Now see the question number 4. A 4, -1, B 0, 7 and C -2, 5 are the vertices of a triangle ABC. आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, उसके दे रखे हैं वर्टेक्स दे रखे हैं सारे. Is reflected in the y axis and then reflected in the origin. यानी दो बार उसका रिफ्लेक्शन हुआ है. According to the question, find the coordinate of the final images of the vertices. यानी जो फाइनल इमेज ट्रायंगल की आएगी उसके हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं. दैट इज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये पॉइंट्स हम यहाँ मार्क कर देते हैं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे. तो ये हमारा क्या है, ए है 4, -1 यानी कि एक्स हमारा पॉजिटिव वाई नेगेटिव है यानी आ गया ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो 1 2 3 4 हो गया और ये 1 हो गया यानी ए पॉइंट विल बी हियर. ये हो गया आपका पॉइंट, तो आप लिख ही लेंगे यहाँ पर. यानी ए पॉइंट आपका दिया है 4, -1 और बी आपका दिया है बच्चों 0, 7 और सी आपका दिया है -2, 5. तो इसको पहले हमें करना है किससे रिफ्लेक्ट, हमें इससे करना है पहले करना है वाई एक्सिस से करना है. तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश. इजंट इट? अब देखना ये है कि अगर हम इसको वाई एक्सिस से कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, तो क्या होता है. तो ए हमने दिखा दिया, फिर बी हमारा 0, 7 है यानी कि ये होगा ऑन द वाई एक्सिस अबव. तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हो गया बी पॉइंट. ओके, फिर सी हमारा लिखा हुआ है -2, 5 यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है. तो 1 2 और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5. दिस विल बी हियर. तो सी पॉइंट विल बी हियर. तो इफ आई ज्वाइन द, अगर ज्वाइन कर लें तो ये आपका बन जाता है ट्रायंगल. यू कैन सी दिस वुड बी अ ट्रायंगल जो कि आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल एबीसी. अब क्या कहते हैं, यू हैव टू रिफ्लेक्ट इन द वाई एक्सिस. अब इन सारे पॉइंट्स को आपको करना है वाई एक्सिस पे. तो देखिए बच्चों, जो ए पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कहाँ आ जाएगा, दिस वुड बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा ए डैश. तो ए डैश कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -4 -4 -1. दिस वुड बी योर ए डैश. और बी डैश, जो बी का पॉइंट है वो आपका चेंज नहीं होगा, ये जो कि वाई एक्सिस पर है, इट विल बी रिमेनिंग सेम. तो यू कैन राइट सेम टू सेम 0, 7. फिर आपका आता है सी की वैल्यू. सी विल गो दिस साइड. सी हमारा यहां पहुंच जाएगा एग्जैक्टली हियर. तो ये हो जाएगा आपका सी डैश. तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे 2, 5. दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्शन. अब आता है देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग ए डैश बी डैश सी डैश. तो ये हमारा क्या था -4 -1, ये क्या था 0 7 और ये क्या था 2 5. अब हमें किससे करना है इसको, हमें करना है ओरिजिन से करना है. किससे करना बच्चों, ओरिजिन से करना है. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ए डबल डैश और ये हमारा हो जाएगा बी डबल डैश और ये हो जाएगा हमारा सी डबल डैश. तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, लेट अस डिस्कस. तो देखो बच्चों, ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करें, अब हमारे जो हमारा नया बनेगा ट्रायंगल वो बनेगा इस तरह से. अगर आप देखेंगे तो वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा. नाउ दिस विल बी योर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी सी डैश. ओके, बी तो हमारा चेंज हुआ नहीं. अब हमें क्या करना है, इन नए कोऑर्डिनेटों किससे करना है, ओरिजिन से. तो जो बी पॉइंट है वो यहां आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो जाएगा हमारा बी डबल डैश. तो बी और बी डैश दोनों सेम है, बी एंड बी डैश दोनों सेम है. बी डबल डैश हमारा यहां पर आ गया. तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0, -7 क्योंकि ये हमारा डायगोनली जाएगा
ए डैश पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ए डैश पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि ये आपका देख रहे हैं तो दिस विल बी हियर, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश और ये हमारा पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा 4,1 और सी डैश हमारा कहाँ पे था, फर्स्ट में था, तो ये पहुंच जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड दोनों नेगेटिव होते तो ये हो जाएगा आपका -2, -5, यानी सी डैश विल बी, सी डबल डैश विल बी हियर, ये आपका कितना था 2, -2, -5, तो -2 ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये इट विल बी हियर, तो ये आपका हो गया सी डबल डैश। नाउ इफ यू जॉइन इट you will get the new triangle, so this you will be new triangle, a double dash ये हो गया, और this would be your final answer. Make it dark, a double dash, b double dash, c double dash, okay, so this will be your answer, final answer. Please see the working, if you have doubt you can check and tell me in your comment box. ट्रायंगल बनाया पहले हम लोगों ने ABC, उसको पहले y एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया तो ये कोऑर्डिनेट आए, फिर जो आंसर आया हमने इसको फिर से रिफ्लेक्ट किया इन द ओरिजिन और हमें ये मिला नए कोऑर्डिनेट। ये क्या है आपका ओरिजिन, दिस विल बी ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, ऑल पॉइंट्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू ओरिजिन, तो ये हमारे नए कोऑर्डिनेट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। Now see the question number 5. Use a graph paper for this question. Take 2 centimeter is equal to 1 unit on both axes. इसमें आपको एक स्केल दी हुई है. You have to take this scale. Do not take yourself. तो 2 सेंटीमीटर का ग्राफ लेना है आपको, ग्राफ पे प्लॉट करना है, यानी बिग ब्लॉक को बोलते हैं 2 सेंटीमीटर, ये तो पता ही होगा आपको। उसको लेना है 1 यूनिट और लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C and D. पहले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फिर रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स B, C and D ऑन y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है और उसके कोऑर्डिनेट मानने हैं B डैश, C डैश, D डैश, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लिखनी है। जॉइन द पॉइंट्स A, B, C, D, D डैश, C डैश, B डैश एंड A, यहाँ पे आपको सबको ज्वाइन करना है इन ऑर्डर टू फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर। इससे क्या आएगा तो बच्चों, यू विल गेट अ क्लोज्ड फिगर एंड देन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर फॉर्म। जो आपकी फिगर आएगी उस फिगर को देखते हुए आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इक्वेशन उस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि द लाइन ऑफ सिमेट्री इज द लाइन विच डिवाइड द होल फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज द आंसर। तो लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट पॉइंट्स। ए हमारा 0 4 है तो ये होगा ऑन द y एक्सिस, तो 1 1 2 3 4, तो हमारा ए पॉइंट यहाँ हो गया। बी पॉइंट हमारा कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 2, तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट इज हियर। सी पॉइंट 1,1 है तो सी पॉइंट विल बी हियर और डी पॉइंट हमारा है 2,0, तो डी पॉइंट विल बी हियर। तो देखा हम लोगों ने कि सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख दिए। ए पॉइंट आपका दिया है 0 4, बी पॉइंट आपका दिया है 2 3, सी पॉइंट दिया है 1 1 और डी पॉइंट दिया है 2 0। अब ये पॉइंट्स में आपसे क्या रखा गया है कि रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी। खाली हमको बी सी डी को करना है वाई एक्सिस से, यानी कि वाई एक्सिस से हमें रिफ्लेक्ट करना है बी को, सी को और डी को। तो ये बन जाता है बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू शो। तो देखिए बच्चों, y से करेंगे तो b पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 1 2, ये पॉइंट हमारा इधर आ गया, b डैश जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है और इसमें हो जाएगा आपका -2, 3। c हमारा पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा -1, 1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और d हमारा आ जाएगा यहाँ पर, d डैश बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -2, 0। ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, b डैश, c डैश, c डैश। अब क्या बोल रहा है, जॉइन द पॉइंट्स a b c d। देखिए a है, ये है, a को b से ज्वाइन किया, a b c d ज्वाइन कर दिया, फिर करता है d डैश, तो इसको मैंने देखिए d डैश हमारे पास ये है, ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग c को करेंगे, c डैश कर दिया, b डैश कर दिया और लास्ट में हम लोगों ने
ए से कर दिया, तो ये कैसे करेंगे, ए बी सी डी, डी डैश सी डैश डी डैश ए। तो ये एक बन गया क्लोज्ड फिगर। और क्या कहते हैं कि इसका आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन निकालनी। देखिए ये फिगर जो आ रहा है, इस फिगर को देखिए, अगर जो ये लाइन आप देख रहे हो वाई एक्सिस, ये एक ऐसी लाइन है जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। आप देखिए जितना इधर है उतना इधर है, यानी इसका मतलब आंसर क्या हो गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, इस वाई एक्सिस। और इसका मतलब क्या होता है, x विल बी 0। यू नो द इक्वेशन ऑफ y axis is x is equal to 0, तो आंसर विल बी x is equal to 0. Please see, and now I'm going to tell the last question for today's video. Please see the question. See today's last question. Now after this I will conclude my video, and I hope you are understanding all the concept of this chapter. Please give your views. The triangle OAB is reflected in the origin to triangle OA dash B dash have the coordinate -3, -4 and 0, -5. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं A डैश B डैश के, तो O के तो पता ही होते हैं, ओरिजिन होते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट कि A डैश B डैश कहाँ पर होगा। तो देखिए A डैश हमारा है -3, -4, यानी ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 1 2 3 हो गया -3, 1 2 3 4 ये हो गया, यानी कि A डैश विल बी हियर। और B हमारा दिया है 0, -5, यानी कि बिलो द x एक्सिस होगा 1 2 3 4 5, B डैश विल बी हियर। तो ये मेरा हो गया OB। अब हम ज्वाइन कर दें अगर यहां पर, तो ये हमें ट्रायंगल मिल रहा है OA डैश B डैश। दिस वुड बी योर ट्रायंगल, इजंट इट। अब क्या कह रहे हैं कि OAB जो ट्रायंगल था इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले हैं। तो इसका मतलब O तो वही रहेगा, लेकिन A पॉइंट कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा। तो कर लेते हैं 1 2 3, और ये कितना था हमारा 1 2 3 4 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा A पॉइंट यहां पर होगा, 8 पॉइंट, इजंट इट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 3, 4। और B हमारा कहां पर होगा, B हमारा होगा यहां पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 5। अब ज्वाइन कर देते हैं अगर हम यहां फिर से, तो देखिए बच्चों ये हमारा आता है एक स्ट्रेट लाइन में, और ये हमारा बन जाता है दूसरा ट्रायंगल OAB, इजंट इट। तो लेट अस राइट हियर कि O हमारा क्या था, ओरिजिन, जो कि हमारा ओरिजिन ही रहेगा अगर हम ओरिजिन से इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो A हमारे पास क्या आया है बच्चों, A हमारा आया 3, 4, और ये A डैश है हमारा -3, -4, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। और B वॉज 0, 5 यहाँ पर है, और ये B डैश हमारा क्या है बच्चों, 0, -5, इजंट इट। अब हम क्या कहते हैं, पूछा है ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। मैंने डायग्राम बना दिया। व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज फॉर्म क्वाड्रेंटल A डैश B डैश। तो देखिए A B, अब इसको अगर मिला देते हो इस तरीके से, तो व्हाट डिड यू गेट, कैन यू टेल। तो ये जो फिगर बन रहा है हमारा A डैश B डैश, क्या जानते हो कौन सा फिगर है, ये फिगर है रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें जो अंदर के एंगल हैं वो सारे के सारे राइट एंगल हैं। ये देखिए आप देखेंगे तो यू विल गेट राइट एंगल सब मिलेंगे आपको। दिस वुड बी अ रेक्टेंगल। फिर बोला है नंबर 4 आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द A डबल डैश, निकालना है द रिफ्लेक्शन ऑफ A इन द ओरिजिन फॉलोड बाय द Y एक्सिस। तो पहले जो हमारे पास है, जो A हमारा पॉइंट था, जो कि हमें दिया था 3, 4, अगर हमें उसे रिफ्लेक्ट करना है किससे, पहले किससे करना है, ओरिजिन से करना है। तो A को जब ओरिजिन से करते तो क्या मिलता है, A डैश मिलता है। ये हमारा दिया है -3, -4, इजंट इट। अब क्या कह रहे हैं,
ए डबल डैश चाहिए तो इसे किससे कर रहे हैं, पहले हमें किससे किया, ए को कर रहे हैं ओरिजिन से फॉरवर्ड बाय द वाई एक्सिस, यानी कि अब हम ए डैश को -3 -4 को किससे कर रहे हैं, वाई एक्सिस से कर रहे हैं, तो मिल रहा है ए डबल डैश। तो इसको अगर हम वाई एक्सिस से करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि समवेयर हियर, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये जो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरा आ गया नेक्स्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आता है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी डबल डैश, निकालना है द रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द ओरिजिन। तो पहले जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या था बच्चों, 0 5। पहले इसे किससे करना है, पहले करना है इसको एक्स एक्सिस से। अगर हम इसको एक्स एक्सिस से करेंगे यानी यहां करेंगे तो बी डैश मिलेगा, तो बी डैश तो हम निकाल चुके हैं 0, -5। अब क्या करेंगे कि बी डैश जो हमारा आया था उससे हमें किससे करना है, इसको ओरिजिन से करना है। प्लीज सी, अगर इसको करेंगे ओरिजिन से फिर से ये हमें बी मिल जाएगा, और इसको बी डैश डबल डैश बोला गया है, तो फिर से बच्चों क्या आ गया 0 5। यानी देखा आपने कि ये जो कोऑर्डिनेट है पहले इसको एक्स से किया तो यहां पहुंचा, लेकिन जब इसको करेंगे ओरिजिन से तो फिर से यहीं पहुंच जाएगा, यानी 0,5। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, और ये सारे आपके आंसर हो गए। प्लीज सी द क्वेश्चन वेरी क्लियरली, इट हैज मेनी कॉन्सेप्ट। तो देखिए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर में। नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माय वीडियो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।